Hello and welcome to Legit Prep. We have started a PYQs series where we'll discuss all the PYQs asked in JMI BALLB law entrance examinations from 2017 to 2024. In this particular video, we'll discuss the questions of Indian polity, and within Indian polity, we'll discuss the questions related to fundamental rights from 2017 to 2024. So let's get it started. So the first question is, which one of the following fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? You have four options: right to equality, right to religion, right to constitutional remedies, and all of the above. So the right answer is C, that is the right to constitutional remedies. See, Dr. B.R. Ambedkar राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, इसको उन्होंने द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, क्योंकि वी नो डेट कि जो भी आर्टिकल्स और फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 अंडर पार्ट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, we know that these fundamental rights are enforceable. And how we know that these fundamental rights are enforceable? Because Article 32 of the Indian Constitution talks about the enforceability of the fundamental rights. Article 32 says that the Supreme Court of India is guardian and defender of the fundamental rights of the citizens and people. अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो रीच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो देन सुप्रीम कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करेगा बाय इशूइंग रेट्स। तो दिस इज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सेबल है। अगर उसका वायलेशन स्टेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा बाय इशूइंग रेट्स। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, and this is not enforceable in the court of law. क्यों? हम कैसे जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में? क्योंकि there is an article 37 of the directive principles of state policy, and it says that directive principles of state policies are not enforceable in the court of law. So because of this article 37 of the Indian Constitution, we know that directive principles of state policies are not enforceable in the court of law. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में एक क्वेश्चन पूछे गए थे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। दिस इज, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर इम्परफेक्ट राइट, पॉजिटिव राइट, मिक्स्ड राइट और नेगेटिव राइट। सो द राइट आंसर इज मिक्स्ड राइट। बट मोस्ट ऑफ द जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निगेटिव राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्टिकल 14 को देखें, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Similarly, Article 15 talks about the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Likewise, Article 21 also talks about no person shall be deprived of his life or personal liberty except procedure established by law. अगर आप wordings of the fundamental rights देख रहे हो, तो fundamental right is asking the state, please do not discriminate on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. Please do not interfere in the right to life or personal liberty of the citizens. ओके, सो इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो है वो निगेटिव है, लेकिन देर आर पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स एज वेल। लाइक आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम एक पॉजिटिव राइट्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 कैपिटल ए, इट इज आस्किंग द स्टेट, please interfere so that the free and compulsory education could be given to the children from the age of 6 to 14 years। और ये आर्टिकल 21 कैपिटल ए इनिशियली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये आर्टिकल 21 जो है फ्रॉम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन 2002। आर्टिकल 45 जो है, ये जब कॉमेंसमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम पे इंडिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो उतना अच्छा नहीं था कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इसलिए जो ड्राफ्टर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने आर्टिकल 45 में ये लिखा था, विद इन द 10 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक 1950 में अगर कमेंसमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑन 26 ऑफ जनवरी, ओके, सो इसके 10 ईयर्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 10 ईयर्स के अंदर ही जो स्टेट है इसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। लेकिन फाइनली इन द ईयर 2002
स्टेट जो है, जो आर्टिकल 45 में बात करता था 0 से 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने को विद इन 10 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इसमें से जो 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसको फ्रॉम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया आर्टिकल 21 कैपिटल ए के फॉर्म में, और नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट। बट जो आर्टिकल 45 जो बात करता था 0 से 14 ईयर्स के बच्चों को, अब नाउ आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट 0 से 6 ईयर के बच्चों का जो कि राइट टू एजुकेशन है और चाइल्डहुड केयर है, वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और 6 टू 14 ईयर्स के बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन है, वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 कैपिटल ए। तो इसलिए आर्टिकल 21 कैपिटल ए को हमें एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट मानते हैं। देन आफ्टर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में, इसको भी हम एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट मानते हैं। देन आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द नेगेटिव राइट्स लाइक राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, ये एक नेगेटिव राइट्स है। देन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, ये एक नेगेटिव राइट्स है। बेसिकली नेगेटिव राइट्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट से बोलता है कि प्लीज जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों का, उसमें इंटरफेयर नहीं करो। दैट्स व्हाई वी से दैट दीज आर नेगेटिव राइट्स। सो द राइट आंसर इज मिक्स्ड राइट्स, बट मेजोरिटी ऑफ द जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक नेगेटिव राइट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, all citizens shall have the right to move freely throughout the territory of India. So the right answer is A। अगर हम आर्टिकल 19 को देखें तो इसमें 6 राइट्स दिए हुए हैं। इनिशियली ये 7 राइट्स हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में था, उसको रिपील कर दिया गया फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो आर्टिकल 19 में ये 6 राइट्स हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देन आफ्टर राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसको ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था थ्रू द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2011। देन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि क्वेश्चन में था। ओके, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1978 रिपील कर दिया गया। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। आप जरूर सुने होंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 19 में भी था एंड आर्टिकल 31 में भी था। आर्टिकल 19 में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में, ये था सिटीजन्स के राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था आर्टिकल 19। और आर्टिकल 31 जो है ये फंडामेंटल राइट बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द पर्सन। दोनों ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड नाउ right to property is a constitutional right under article 300 capital A, and do remember this right is right to person and not to citizen। means person includes citizens and aliens as well। so अगर हम देखें आर्टिकल 19 का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्स्ट है, वो अगर आप देखोगे तो जो राइट्स दिए हुए हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर ये सारे सब क्लॉज हैं। बट इन जो सब क्लॉज ए है, इसका जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। देन ये सब क्लॉज 2 जो है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसका जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। तो देन ऐसे ही सब्सिक्वेंटली जो बाकी के क्लॉजेज हैं आर्टिकल 19 में, उसमें रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं। जो राइट्स लिखे हुए हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर ही ये 6 राइट्स लिखे हुए हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है, और बेसिकली जो फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में है, इट टॉक्स अबाउट सिटीजन्स के पास अपना राइट है टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स ओपिनियंस और आइडियाज। और मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो वो स्पीच के थ्रू अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस और आइडियाज को कर सकते हैं। वो राइटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग के भी थ्रू कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और एनी अदर मीडियम जिससे अपने एक्सप्रेशन थॉट्स एंड ओपिनियंस को वो एक्सप्रेस कर सके। वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो इंक्लूड करता है। ओके, लेकिन कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया है, और एक्सपेंड करते करते इसमें काफ़ी राइट्स इंक्लूड हुए हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ये इंक्लूड करता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस। अगर कोई नहीं बोलना चाहे, वो उसका फंडामेंटल राइट है, एंड दिस इज आल्सो अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ही डोमेन में आता है। ये इन द केस ऑफ विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको हम नेशनल एंथम केस के भी नाम से जानते हैं, ये 1986 में आया था ये केस। इस केस में कोर्ट ने बोला था जो फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है वो एक पार्ट है
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अगर कोई नहीं बोलता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है। इवन दो क्यों ना वो नेशनल एंथम ही क्यों ना हो, अगर कोई चाहे कि उसके पास ऑब्वियस रीजन है, उसके पास वैलिड रीजन है नहीं पढ़ने का, तो देन वो नहीं बोल सकता है, वो उसका फ्रीडम ऑफ साइलेंस है। देन आफ्टर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। देन आफ्टर right to know, right to information, and right to reply is also a fundamental right in the domain of freedom of speech and expression. Then after right to access information over the internet. People get confused that right to internet is a fundamental right, but it is not. Actually, the right to access information over the internet is a fundamental right and not the right to internet is a fundamental right. अब जो राइट्स दिए हुए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर, इसका जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर। अब ये रिस्ट्रिक्शंस 8 हैं और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो दो ग्राउंड पे हैं, एक नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे है और एक सोशल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे है। नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे ये फोर हैं: सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, friendly relations with the foreign nations, and public order. These four grounds are based on the national interest और जो four grounds other four grounds हैं वो based on social interest like decency and morality, contempt of court, defamation और incitement to an offense। इन 8 ग्राउंड्स पे स्टेट जो है आपका, मेरा या किसी का भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू रिप्लाई and right to access information over the internet. These rights can be curtailed by the state based on these grounds only. Okay, now moving towards the next question, as we cannot discuss all the concepts in PYQ's analysis only. The next question is Article 21 states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. So the right answer is D, that is liberty. When we look at the wordings of the Article 21, it says that protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty. तो फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछ रहा था कि ब्लैंक्स में क्या फिल होगा, लाइक पर्सनल लिबर्टी होगा यहाँ पे, सो द राइट आंसर इज डी। आर्टिकल 21 बेसिकली टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अब पहले जो हम आर्टिकल 21 में ये फ्रेज जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मीन्स स्टेट कैन ओनली वायलेट द राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पहले हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि एक जापानीज कनोटेशन है, हमने जापान से लिया है, इसको हम फॉलो करते थे। बट आफ्टर द केस ऑफ मेनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के बाद से हम ड्यू प्रोसेस भी फॉलो करते हैं along with the procedure established by law and along with the principle of natural justice। ड्यू प्रोसेस कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ड्यू प्रोसेस जो है वो यूएसए से हमने इंस्पायर्ड होकर के लिया है और ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है बिकॉज प्रोसीजर established by law जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव से भी प्रोवाइड करता है और आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 21 के जो डोमेन है उसको कोर्ट ने टाइम टू टाइम एक्सपेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है एक फंडामेंटल राइट है, इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ द हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देन आफ्टर राइट टू ट्रेवल अब्रॉड is also a fundamental right. It was also held in the case of Menika Gandhi versus Union of India. In this case, court held that right to travel abroad is also fundamental right under Article 21, not under Article 19. Right to dignity is also a fundamental right under Article 21. Right to privacy is also a fundamental right under Article 21, and right to privacy was held as a fundamental right in the case of the case Puttaswamy versus Union of India. Case Puttaswamy was a retired judge and he filed a petition at the time of the Aadhaar. This is important because in previous year 2024, Puttaswamy died at the age of I think 96. So right to clean environment is also a fundamental right, and right to livelihood is also a fundamental right. Right to marriage is a fundamental right. Right against torture is a fundamental right. Right against bondage is a fundamental right. Right to legal aid is a fundamental right. And right to food is a fundamental right. So do remember, right to legal aid is a fundamental right under Article 21. राइट अगेंस्ट बॉन्डेज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। तो बहुत सारे राइट्स जो हैं जिनको आर्टिकल 21 के अंदर कोर्ट ने फंडामेंटल राइट हेल्ड कर दिया, जैसे राइट टू शेल्टर। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, prohibition of discrimination on grounds of religion etc, article 15 of the constitution of India is a fundamental right classifiable under। तो हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 है: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो पूछा जा रहा है जो कि आर्टिकल 15 में जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, एटीसी, ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर क्लासिफाई होगा? सो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर राइट टू इक्वलिटी। तो दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। देन आफ्टर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। Then right to freedom of religion article 25 से article 28, then cultural and educational right article 29 and article 30, then right to constitutional remedies. So these are the 6 fundamental rights we have. एक सेवेंथ फंडामेंटल राइट भी था जो था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करता था, और आर्टिकल 31 जो पर्सन्स के राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करता था। और ये दोनों ही को रिपील कर दिया गया फ्रॉम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और नाउ इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 31 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट कि आर्टिकल 31 क्लॉज 1 बात करता था कि स्टेट कैन नॉट एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट मेकिंग लॉ, और आर्टिकल 31 क्लॉज 2 बात करता था कि स्टेट जो है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन उसको इक्वल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीन्स जितने का प्रॉपर्टी है उतना कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद से गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और जो आर्टिकल 31 था उसमें दो आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 31 कैपिटल ए एंड आर्टिकल 31 कैपिटल बी। आर्टिकल 31 कैपिटल ए जो है वो बात करता था कि स्टेट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी ले सकता है, एक्वायर कर सकता है विदाउट गिविंग इक्वल कॉम्पनसेशन। और आर्टिकल 31 कैपिटल बी से नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उसमें जो भी लॉ पार्लियामेंट पास करेगा टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, उस लॉ को नाइन्थ शेड्यूल में स्टेट जो है वो रख देगा। देन उस पे जुडिशरी कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ। देन आफ्टर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फिर से इसी में आर्टिकल 31 में कैपिटल सी को ऐड किया गया। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी इसमें अमेंड किए गए। देन बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए राइट टू प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, और फाइनली in the year 1978, through the 44th Constitutional Amendment Act, government repealed the Article 19 Clause 1 Subclause F and Article 31 Clause 1 and Clause 2. Or now right to property is a constitutional right under Article 300 capital A. So क्वेश्चन जो था आर्टिकल 15 का बात कर रहा था, पूछ रहा था कि कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर क्लासिफाइबल होगा, वो है राइट टू इक्वलिटी। So the next question is which of the following writs can be issued to release a person from illegal detention? अगर किसी पर्सन को illegally detain कर लिया जाता है, arbitrary detention कर लिया जाता है, तो कौन सा रेट इशू होगा? So the right answer is habeas corpus. habeas corpus का रेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, क्योंकि रेट इशू करना सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट भी रेट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट का जो रेट इशू करने का जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो करेगा, अगर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है रेट इशू करने का वो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और जो हाई कोर्ट के पास है वो 226 आर्टिकल 226 के अंदर है। ओके, सो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को देखें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेट्स कैन बी इशूड: habeas corpus, mandamus, prohibition, quo और certiorari। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो था वो habeas corpus था। नाउ विल डिस्कस habeas corpus इन ब्रीफ। habeas corpus का रेट जो है वो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन केस कि अगर किसी को आर्बिट्ररली डिटेन कर लिया गया है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अगर किसी को ऐसे ही डिटेन कर लिया गया जिसने किसी लॉ का वायलेशन नहीं किया था, जिसको हम आर्बिट्ररी डिटेंशन बोलते हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बोलेगा कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट लाने के लिए। देन कोर्ट जो है एग्जामिन करेगा कि ग्राउंड्स, जिस ग्राउंड्स पे उसको डिटेन किया गया है, क्या ये वैलिड ग्राउंड है या नहीं है। अगर वैलिड ग्राउंड होगा तो देन डिटेंशन कंटिन्यू रहेगा। अगर वैलिड ग्राउंड नहीं होगा तो देन कोर्ट जो है रिट ऑफ हैबियस corpus जो है वो इशू करेगा, और उस पर्सन को फ्री करेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा जो अरेस्ट किया। ओके, सो किस सिचुएशंस में रेट ऑफ हैबियस corpus इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो सिचुएशन नंबर 1, व्हेन द पर्सन इज डिटेन्ड एंड नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। जैसे हम आर्टिकल 22 के अंदर देखते हैं, अगर किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स के अंदर लेकर के जाना होता है, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। अगर किसी पर्सन को अगर डिटेंशन के बाद अगर 24 आवर्स के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया गया, एक्सक्लूडिंग द
जॉर्नी टाइम, तो रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। ओके, जो सेकंड सिचुएशन है जिसमें रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस इशू कर सकता है कोर्ट, that is when a person is arrested without any violation of law. If somebody is arrested without any violation of law, then court can issue the writ of habeas corpus. The next situation is when a person is arrested under a law which is unconstitutional. ऐसा लॉ जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड हो गया है बाय द कोर्ट, अगर उस लॉ के अंदर, उस सेक्शन के अंदर, अगर उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर अगर कोई अरेस्ट करता है तो रिट ऑफ habeas corpus इशू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो 66 कैपिटल ए है ऑफ आईटी एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इन द श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया था। अगर इस सेक्शन के अंदर अगर किसी को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो कोर्ट जो है हैबियस corpus का रेट इशू करेगा टू रिलीज दैट पर्सन। Okay, the next situation is when detention is done to harm the person or is malified. अगर detention जो है वो किसी person को harm करने के लिए या फिर malified intention से अगर detain किया जाता है तो then writ of habeas corpus जो है वो issue हो सकता है कोर्ट से। malified intention के मतलब ये है कि जैसे sometime people जो अमीर लोग होते हैं वो पुलिस को पैसा दे देते हैं and then वो बोलते हैं bribery देने के बाद कि इस person को पकड़ो, harass करो, पीटो या फिर detain करके रखो just to threaten that person। तो इस केस में भी habeas corpus का रेट जो है इशू हो सकता है। और रेट ऑफ हैबियस corpus को हम बुलवॉक ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी बोलते हैं। और जनरली क्या होता है, जब आप कोर्ट में जाओगे तो आपका एक लोकस स्टेंडाई होता है, लाइक कोर्ट जो है वो पूछता है कि आपका कौन सा राइट वायलेट होता है। बट इन केस ऑफ हैबियस corpus कोई भी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द डिटेनी, कोई भी पर्सन कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि हाँ उसके फ्रेंड्स या फिर उसके फैमिली मेंबर को डिटेन किया गया है। और दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई। इस केस में कोर्ट जो है लोकस स्टेंडाई नहीं देखता है, जैसे कि जो पर्सन अरेस्ट हो गया वो कोर्ट आ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है जो आएगा उसका तो कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है, बट जिसके लिए आया है उसका राइट वायलेट हुआ है। बेसिकली लोकस स्टेंडाई का मतलब यही होता है कि जो पर्सन आया है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका कोई राइट वायलेट हुआ है। और इसके साथ ही रेट ऑफ हैबियस corpus जो है एक एक्सेप्शन है ऑफ द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। बेसिकली जो केस डिसाइड हो जाता है एक बार, उसी ग्राउंड पे उसी केस को दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता है। बट इन द केस ऑफ रेट ऑफ हैबियस corpus उस केस को दोबारा फाइल किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेट। So when we look at the Article 32 of the Indian Constitution, there are five rates: a rate of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, or certiorari. The quo warranto is a rate, certiorari is a rate, prohibition is a rate, mandamus is a rate, and habeas corpus is a rate. Warrant is not a rate. Okay, so the right answer is warrant. So the next question is, under the Constitution of India, right to pollution-free environment has emerged as a fundamental right from the right to. So the right answer is life and personal liberty under Article 21. This was also held in the case of the MC Mehta versus Union of India, that right to clean environment is a fundamental right. So it comes, right to pollution-free environment comes under the domain of the right to life and personal liberty. The next question is, the object of which one of the following rates is to prevent a person to hold public office which he is not legally entitled to hold? तो कौन सा रेट है जो बात करता है कि कोई पर्सन जो लीगली इंटाइटल नहीं है किसी ऑफिस को होल्ड करने का, तो वो उससे क्वेश्चन करता है कि आप किस ऑथोरिटी से आप किसी ऑफिस को होल्ड करते हो। दैट इज द रेट ऑफ कोवारेंटो। ये पूछता है कि कौन से ऑथोरिटी से आप किसी ऑफिस को होल्ड करते हो। अगर इलीगली कोई अगर ऑफिस को होल्ड करता है तो देन in that case, the writ of co-warranto can be issued by the court. So, a writ of co-warrant means by what warrant, by what authority you are occupying any office. Okay, so this writ is applicable to the public office only and not to the private office. तो ये writ जो है, writ of co-warranto cannot be issued against a private office. It is only valid for the public office. So the next question we have, with reference to the fundamental rights under the Indian Constitution, consider the following statements. Statement number one, they are protected and enforced by the Constitution. Statement number two, they can be amended by simple majority. Statement number three, the Supreme Court is guardian of fundamental rights. Statement number four, the constitutional rights are fundamental rights. So जो पहला statement है, they are protected and enforced by the Constitution. So this is correct because Article 32 talks about the protection and the enforcement of the fundamental rights. As we see that Supreme Court is protector and guardian of the fundamental rights, and for the enforceability, there are five kinds of rates given under the Article 32 of the Indian Constitution that Supreme Court can issue, and even High Court can issue under Article 2 to 6. They can be amended by simple majority. This is incorrect because जो directive principles of state policy हैं और fundamental rights हैं, these rights can be only amended by the special majority given under Article 368. Under Article 368,
There are two types of amendments given. One a special majority and the other is a special majority plus ratification of the half of the states. तो सिंपल मेजोरिटी से फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी नहीं होता है अमेंड. So the second statement is wrong. The third statement is the Supreme Court is the guardian of the fundamental rights. Yes, according to Article 32, Supreme Court is the guardian of the fundamental rights. The fourth statement is all constitutional rights are fundamental rights. This is incorrect because the rights given under Part 3 of the Indian Constitution from Article 12 to Article 35, these are fundamental rights and not all constitutional rights are fundamental rights. So only statement number 1 and statement number 3 is correct. So the right answer is B, 1 and 3. So the next question is consider the following statements regarding right to freedom of movement. The Article 19 of the Indian Constitution provides the freedom to move inside as well as outside the country. So outside the country जो है ये Article 19 में नहीं है. Article 19 talks about freedom to movement inside the country or throughout the territory of India. Outside the country जो है ये भी एक fundamental right है, but not in Article 19. Because in the case of Maneka Gandhi versus Union of India, Supreme Court held that right to travel abroad is a fundamental right under Article 21 and not under Article 19. That's why the first statement is incorrect. It is available to citizens of India, foreigners, and legal persons like companies. So Article 19 is not available for the foreigners. So statement number 2 is also incorrect. So the right answer is D. Neither 1 or 2 is correct. So the next question is with reference to the Puttaswamy case judgment, which among the following statement is correct? Statement number 1, it established the right to privacy as a fundamental right. Yes, indeed, it is correct because in the year 2017, Supreme Court held that right to privacy is a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. Okay, so next statement is Supreme Court decriminalized homosexuality in this case. So Supreme Court indeed decriminalized the homosexuality, but not in the Puttaswamy case. It decriminalized in the case of Nautej Singh Jawar versus Union of India in 2019. So statement number 2 is incorrect. Right to privacy is an intrinsic part of the right to life. This is correct because right to privacy is considered as an intrinsic part of the right to life under Article 21. So only a statement number 2 and a statement number 3 is correct. So the right answer is C, 1 and 3. So the next question is the freedom of press under Article 19 of the Indian Constitution is restricted on which of the following grounds? Or grounds दिए हुए हैं sovereignty and integrity of India, contempt of court, defamation, incitement to an offense. When we look at the Article 19 of the Indian Constitution, particularly clause 1, इसमें सब क्लॉजेस के फॉर्म में 6 राइट्स दिए हुए हैं. जैसे सब क्लॉज ए टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो इनकॉर्पोरेट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिप्लाई, राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है, इसका जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. और ये 8 रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं जो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, security of the state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court or defamation, along with incitement to an offense. तो ये जो भी restrictions के ground दिए हुए हैं sovereignty and integrity of India, तो ये restriction में है, contempt of court restriction में है, then defamation restriction में है, incitement to an offense restriction में है. So the right answer is D, 1, 2, 4, 3. वैसे ही जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इनकॉर्पोरेट करता है उसके 8 ग्राउंड्स दिए हुए हैं रिस्ट्रिक्शन के अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर. वैसे ही जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज बी में फ्रीडम ऑफ असेंबली दिया है इसके रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में दिए हुए हैं. वैसे ही फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यूनियन एंड कोऑपरेटिव्स के जो रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में दिए हुए हैं. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में दिए हुए हैं. फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के जो रिस्ट्रिक्शन है वो अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में ही दिए हुए हैं. तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस दोनों का जो रिस्ट्रिक्शन है वो सेम है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में दोनों के रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं. वैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो दिए हुए हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के अंदर. सो यहाँ पे हमने जो भी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस जामिया ने अपने BA LLB लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा था उसको हमने फिनिश कर लिया. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी from the other topics if they have asked. In meantime, if you are preparing for BA LLB law entrance examinations of JMI, MU or CUET, you can join our course that is न्याय पाथ 2.0. ये एक सेकंड बैच है हमारा जो एक फ्रेश बैच है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लाइक जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, legal aptitude classes for the elementary mathematics including reasoning or classes of English.
लीगल एप्टीट्यूड के क्लासेस में आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ में आपको बीएनएस एंड फैमिली लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट द ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड भी कवर कराया जाएगा, क्योंकि 2024 में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। ओके, इस कोर्स में कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा अप टू योर एग्जाम डेट। ओके, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको इस कोर्स का एक्सेस होगा। जो क्लासेस होंगे वो लाइव होंगे। आपको जेएमआई के लिए जो बीएलएलबी लॉ एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके 20 मॉक्स मिलेंगे। ओके, एमयू के लिए आपको 10 मॉक्स मिलेंगे, सीयूईटी के लिए 5 मॉक्स मिलेंगे। डाउट सेशंस अवेलेबल है। डेली क्विजेज होते हैं टेलीग्राम पे सभी सब्जेक्ट्स का। सेक्शनल टेस्ट एप्लीकेशन पे आपके लिए अवेलेबल होगा। मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको। देन आफ्टर वर्कबुक्स मिलेंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। मॉक जो होगा उसके एनालिसिस आपको मिलेंगे कि कैसे मॉक को सॉल्व करते हैं और कौन से गलती आप की हो, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड यू कैन एक्सेल योर प्रिपरेशन। सो अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यूज एनालिसिस मिलेगा आपको। देन डीपीपीज मिलेंगे आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, और जेएमआई पीवाईक्यूज ब्रेकडाउन अलॉन्ग विद द एमयू के ब्रेकडाउन भी मिलेंगे कि किस ईयर से कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन ये आपको एक बुक के फॉर्म में मिलेगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स दैट इज NIAPAS 2.0 for the JMI, MU and CUET BLLB law entrance examinations, you can call on the given number, that is 8210370810, and you can talk if you have any queries. और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हो लेजिट प्रेप का, तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली करंट अफेयर के अपडेट्स मिलते हैं। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सेशंस भी होते हैं फ्री, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देन आफ्टर आप क्वेरीज हो अगर आपके पास एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो मेंटर्स से। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो लेजिट प्रेप का, तो आप इस क्यूआर को स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे फ्री मटेरियल्स हैं, आप अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच for watching this video. See you in the next video. There will discuss the other parts of the Indian polity if they have asked any question in JMI BLLB entrance examinations. Thank you.